BS9 మీడియాకు స్వాగతం. పవిత్ర కాశీ విశ్వనాథుని ఆలయ సుందరీకరణ పనులు, గంగానదిని కలుపుతూ నిర్మించిన కారిడార్ను ప్రధాని మోదీ సోమవారం దేశ ప్రజలకు అంకితం చేశారు. 339 కోట్ల రూపాయలతో కాశీ విశ్వనాథుని కారిడార్ ప్రాజెక్టుకు ప్రధాని మోదీ మార్చి 8, 2019న శంకుస్థాపన చేశారు. భక్తులకు వివిధ సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు 23 కొత్త భవనాలను నిర్మించారు. ఇది వారణాసిలో పర్యాటక రంగానికి పెద్దపీట వేస్తుందని చెప్పవచ్చు. దివ్యకాశీ భవ్యకాశీ పేరుతో జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమం కోసం కాశీ పట్టణం సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. ప్రధాని మంత్రి మోదీ 2 రోజుల కాశీ పర్యటనలో భాగంగా జరిగిన కాశీ విశ్వనాథుని దర్శనం, అదేవిధంగా వారణాసిలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గంగా హారతి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న దృశ్యాలు మనము చూద్దాం. वहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काल भैरव मंदिर में बाबा के पास मत्था टेकने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि काल भैरव को वाराणसी का कोतवाल भी कहा जाता है। उनको इस पूरे शहर की एक तरीके से सुरक्षा का जिम्मा भगवान शिव ने दिया है, ऐसी मान्यता है। और इनकी अनुमति के बिना, परमिशन के बिना, आज्ञा के बिना किसी को भी इस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है, ऐसी एक पौराणिक मान्यता है। ऐसे में काल भैरव के दर्शन पहले करने की एक मान्यता है। निश्चित तौर से इसी मान्यता के प्रति आदर प्रकट करते हुए खुद प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं सबसे पहले बाबा काल भैरव के दर्शन करने के लिए, और वहां से अनुमति लेकर अब वो बाकी अन्य जगहों पर शीश नवाने के लिए पहुंचेंगे। निश्चित तौर से एक आध्यात्मिक मान्यता, अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था जो कहीं ना कहीं पहले समय से चली आ रही है, और बाबा काल भैरव के चित्र को समर्पित करते हुए उस मंदिर के तमाम पुजारीगण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निश्चित तौर से ये माथे पे उनके साथ टीका लगाया जा रहा है, और ये एक आशीर्वाद स्वरूप होता है कि ललाट पे उस टीके को रखना, और उस एक मान्यता के तहत ये मानना कि जो तेज भगवान के श्री चरणों में होता है वो तेज वहां से निकल के तमाम पुजारियों के माध्यम से। तो निश्चित तौर से एक बड़ा दिन काशी के लिहाज से भी, काशी के लिहाज से इसलिए क्योंकि नए दिव्य भव्य काशी की It is almost reminiscent of Deepavali festivities, where the ghats are completely lit diyas. In a similar fashion, it is an evening of celebration, and why not in Varanasi? And from Ravidas Ghat, Prime Minister is about from Swami Vivekananda cruise on the holy river Ganga. And Prime Minister, in a short while from now, will begin his sailing on the cruise, once again taking in the breathtaking sights of the ghats of Kashi. It is a symbol of our spiritual reality, a symbol of India's. काशी में आज महोत्सव है समूचे भारत में। आज ये स्वर्ण शिखर The shoulders, and that glimpse of the beauty of Kashi, the beauty of Varanasi, a beauty that cannot be described in words. Lakhs of diyas, lakhs of lights that have been used to decorate the ghats today, and add to that the spiritual energy of the people of Kashi, all coming together to lit the temple town like never before. शुभेंदु, ये दृश्य देखिए, यही कहा जाता है कि अर्धचार स्थिति में मां गंगा भगवान शिव के केवल चरण छूने के लिए काशी में अपनी दिशा बदल देती हैं और उत्तर वाहिनी हो जाती हैं। अद्भुत दृश्य थे, जैसे शंकर जी के, भगवान शंकर के माथे पर गलियारे, गलियां, सब कुछ आज आलोक से प्रकाशित हैं। ये देख सकते हैं कितना विहंगम दृश्य है समूची काशी का। समूची काशी में शिव दीपावली का आज आयोजन है। घरों घरों को सजाया गया है, एक एक
घर की हर चौखट पर दीपक जले हुए हैं। झालर और रोशनियां इस समय लोगों को मंत्रमुग्ध कर दे रही हैं, क्योंकि आज काशी में महोत्सव का दिन है, क्योंकि आज काशी के बाबा का, दिगंबर का, भोलेनाथ का, शिवशंकर का, काशी विश्वनाथ धाम का, नव्य और दिव्य धाम का आज लोकार्पण हुआ है। And as people continue to gather to be a part of this exceptional celebration, you see Ganga elevated planks, brass lamp, idol of holy Ganga, flowers, and incense beyond words, reflecting in the waters of the holy Ganga. And now you also see the celebration, the reasons for the celebration, Shri Kashi Vishwanath Dham in Varanasi. You see an aerial glimpse of that, the Dham that Prime Minister inaugurated today, that is expected to completely transform the face of the ancient temple town of Varanasi. From the cruise. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास आनंद कानन या आनंद वन कहते ही इसीलिए है कि ये दीपक की जो ज्योति है वो आपको उस परम ब्रह्म की ओर लेकर के जाती है। ज्योति को हम जनार्दन मानते हैं, भगवान की संज्ञा दी जाती है, और जो हमारे ऋग्वेद है उसकी जो शुरुआत हुई है वो भी अग्नि से ही हुई है, और भगवान राम के नाम में जो र अक्षर है वो अग्नि का बीज मंत्र है। इस तरह से जो हम दीप का प्रज्वलन करते हैं, दीपों के माध्यम से जो हम आवाहन करते हैं अपने भगवान का, अपने आराध्य का, अपने इष्ट का, अपने आप में वो आपको एक कर है। और इसीलिए यहाँ पर रात्रि निवास करना, यहाँ पर रात्रि में देवार्चन करना, दीप जो यज्ञ अधूरा है, जो आहुति बाकी है, वो है जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करना। और इसमें यह अपेक्षा की जाती है कि कोटि कोटि पुत्रों की माता ऐसी ऊर्जा अपने पुत्रों में भरेगी कि सब समवेत स्वर में, सब साहचर्य में, सब एक साथ होकर इस महायज्ञ में शामिल होंगे और देश को in the shining waters of holy Ganga, Namami Gange Abhiyan, that seeks to realize what was once considered impossible.
with the celebratory firecrackers. ये बाबा विश्वनाथ के धाम का विहंगम दृश्य है। बाबा विश्वनाथ This spiritual tradition of thousands of years has reached a new milestone. The special courtyard, created specially so that devotees all throughout the day can come together to worship their beloved Bholinath, freeing them from the strangles of narrow lanes. The space has been opened up for the spiritual celebration, for devotion, and to create, and the skies lit up with the celebratory firecrackers. ये बाबा विश्वनाथ के धाम का विहंगम दृश्य है। बाबा विश्वनाथ का धाम इससे पूर्व में 3000 फीट तक ही सीमित था। दिग्दिगांतर को नियंत्रित करने वाले विश्व के नाथ का मंदिर का परिसर बेहद सीमित था। बर्बर आक्रांताओं और आघातों को सहकर भी यह अक्षुण्ण और अक्षर रहा। महारानी अहिल्याबाई ने